Hello students, in the earlier video lectures we have discussed some simple programs using C++. Today we will be discussing the use of constructors in the class. The programs we will be doing will be first program, that is write a C++ program to explain the functionality of constructors in a class. Okay, so what is the use of constructors in a class? This we will be studying using this example, and this example will be using a default constructor. Next is we will be discussing parameterized constructor and how to call implicit and how to have implicit and explicit calling of parameterized constructor. In the third program, we will be seeing how to use multiple constructors, or that is also called overloaded constructors. That is, the same name of the constructor is being called with different type of variables and different types of, that is, we will be using two parameterized constructors and one default constructor in this third program, that is the 11th program. And in the 12th program, we will be studying the concept of constructor and destructor. जिस तरह से कंस्ट्रक्टर हम लोग मेमोरी क्रिएट करने के लिए करते हैं, वैसे ही डिस्ट्रक्टर से उस मेमोरी को डिलीट किया जाता है, तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बेस्ड ये दोनों प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे. The next one is we will be using a static data member and static member function with the help of constructors, and we will be counting the number of objects created of a particular class type using static data member and static member functions. Okay, so in the next videos we will be discussing these programs, that is from 9th, 10th, 11th, 12th and 13th. So students, this is our first program. So the first program using constructors. Okay. So in this program, see, we have declared a class that is of name area. It is having two private data members, that is length and breadth. And in the public member functions, we are having the first member function, that is get data, for getting the data, that is the length and the breadth from the user. The second function, this is a constructor. Okay, see, the name of the constructor should always be the same as the name of the class. As I have already told you, the name of the class and the name of the constructor should be the same. And what is the use of constructor? Constructors are used to initialize the values to the private data members. Okay, so here in this constructor, what we are doing is we are initializing the value of L equal to 5 and B equal to 2. That is, length and breadth are initialized as 5 and 2 respectively using this constructor area. So the use of constructors is, as we will be creating an object, जैसे ही हम लोग क्लास एरिया टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज पुट हो जाएंगी, दैट इज लेंथ विल बी इक्वल टू 5 एंड ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 2. ओके, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें कोई भी वैल्यूज हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते हैं और ना ही वो कोई वैल्यूज रिटर्न कर सकता है. सो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर हम अपने प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम यानी C++ कंपाइलर उसमें एक ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है जो कि ब्लैंक होता है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट मेंबर फंक्शन इज पुट डेटा. सो द डिफरेंस बिटवीन द अदर मेंबर फंक्शंस एंड द कंस्ट्रक्टर इज दैट द कंस्ट्रक्टर डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, फर्स्ट थिंग. Second is the name of the constructor is same as the name of the class, and third thing is the constructor should always be declared within a public member function. It cannot be a private member function. So these three things are important for regarding constructors. Next program is put data. Put data में क्या कर रहे हैं हम लोग? We are calculating the area using the formula length into breadth. It is also of type integer and we are printing what is the area. ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ हम आउटपुट भी प्रिंट कर रहे हैं. नाउ सी द मेन प्रोग्राम. एज यू विल सी द मेन प्रोग्राम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. हियर आई एम क्रिएटिंग two objects A1 and A2. Both are of type area. Okay, with the object A1 we are calling the member function get data. So as I call the member function get data with the object A1, so what will happen? It will prompt the user to enter the length and the breadth. The user will enter the length and the breadth, and the length and the breadth will be initialized as per the values entered by the user. Okay, so area with entered length and breadth.
So that will be displayed in the a1.putData. When we are calling that member function putData along with the object a1, what will happen? That the calculation will be done, and whatever the values of length and breadth user has entered, based on that the calculation of area will be made and we will get the output. Okay, now see area using constructor. Okay, we have defined a constructor also over here. Okay, so what are the values through the constructor? Through the constructor the value of length is 5 and value of breadth is 2. That is by default अगर यूजर कुछ भी एंटर ना करे या हम यूजर को प्रॉम्प्ट ही ना करें एंटर करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहेंगी 5 और 2. तो A2 जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके साथ मैंने गेट डेटा फंक्शन कॉल नहीं किया है, तो यूज़र से कोई वैल्यू हमको नहीं मिली है, तो ऑटोमेटिकली A2 जो क्लास है उसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स में जो वैल्यूज पुट होंगी वो होंगी 5 और 2. तो जैसे ही a2.putData रन होगा तो एरिया कैलकुलेट होगी विद द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 5 and 2. सो दैट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर से एक पर्टिकुलर वैल्यू जो भी हम इनिशियलाइज करते हैं वो वैल्यू ऑटोमेटिकली प्राइवेट डेटा मेंबर्स में पुट हो जाती है. ओके, so let's see the output of this program. See, I'm running this program. Enter the length and breadth. Suppose I have entered 6 and 7 as length and breadth. Area with entered length and breadth, that is 42, and the area using constructor is 10. Why 10? Because it is 5 into 2 as we have given the values using constructors. Okay, so this was the first program that we discussed. The next program is we will be using a parameterized constructor. See, in this program we have used a parameterized constructor. Okay, so what is a parameterized constructor? Parameterized constructor में हम लोग values put कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे भी क्लास का नाम है एग्जाम्पल और हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी एग्जाम्पल है एज द नेम ऑफ द क्लास सेम. इंटीजर वैल्यूज है m और n. ठीक है, एंड व्हाट वी आर गिविंग द प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो है इसमें हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं. a में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं m और b में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं n की. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. उसके बाद हम डिस्प्ले कर रहे हैं वैल्यूज. द वैल्यूज आर a एंड b. तो इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, बस दो वैल्यूज को हम यूजर से एंटर करा रहे हैं और उनको हम डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है, ये वैल्यूज आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉलिंग हम इस प्रोग्राम में एक्चुअली सीख रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लिसिट कॉल और इम्प्लिसिट कॉल क्या होता है. जब हम ऑब्जेक्ट वन एक मैंने वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ऑफ टाइप क्लास एग्जाम्पल टाइप का एक ऑब्जेक्ट वन डिफाइन किया और उसके साथ मैंने वैल्यूज डाल दी 10 और 20. ठीक है, तो इस तरह का जब हम कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को तो इसको इम्प्लिसिट कॉल बोलते हैं. और उसी में अगर हम ऐसा कॉल करें एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 that is equal to example 30, 40, this type of call is called explicit call. So questions are asked sometimes that what do you understand by implicit and explicit call and describe it using a program. So for that this program is very important. Then next object 1 dot display क्या होगी, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज डिस्प्ले होंगी यानी 10 और 20 डिस्प्ले होगा. ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले जैसे कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज डिस्प्ले होगी यानी 30 और 40 डिस्प्ले होगा. इस प्रोग्राम में बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम में हम सिर्फ एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉलिंग किस तरह से की जाती है और उसकी आउटपुट कैसे होती है. ठीक है, मैं इसको रन करके बता रही हूँ आपको. सी एरिया, ये तो पिछले प्रोग्राम का आउटपुट था. एरिया इज 10 तक, वैल्यूज आर 10 and 20 and values are 30 and 40. That is what we wanted to display. We just wanted to display object 1 dot display. क्या होगा, values are 10 and 20 और object 2 का जब डिस्प्ले होगा तो. So next we are seeing the next program. So in this program we will be using multiple constructors. See, in this program we are using multiple constructors, that is also called overloading of constructors. What we are doing here is we are creating a class that is of the type of the name sum,
and in this class there are private data members, that is A and B of integer type, C is of float type, and D is of double type. Okay, so three different types of private data members we are having in this particular class. Next, we are having here three constructors. In the earlier programs we were using a single constructor. Okay, so here we are using three constructors. The first one is the default constructor. Okay, so in the default constructor we cannot pass any arguments. So in this we are not passing any arguments, we are getting the values from the user. Okay, so as we will be defining an object, so what will be asked? It will be asked to enter the values from the user. User will enter the values, and we are simply calculating the sum of the two integer values. Okay, so user has to give integer values, and these integer values are calculated, and sum is calculated using these values, and the answer is returned. This is the first program, that is the first constructor we are using. In the same program we are using another constructor, that is again with the name sum, and here this is a type of parameterized constructor. The earlier one was default constructor. तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं x और y. यहाँ पे हम a को पुट कर रहे हैं एज x and b as y, and we are calculating the sum again, that is a plus b. So in this question, in this type parameterized constructor, we will be putting the values of x and y and will be calculating the sum. But ये दोनों values integer type values ही हैं. In the third constructor, ये third constructor है, इसका भी नाम देखिए sum है. इसमें हम तीन वैल्यूज पास कर रहे हैं, that is one x is of type integer, y is of type float, and z is of type double. What we are doing here is, here also we are calculating the sum. We are putting a equals to x, c equals to y, d equals to z, and we are getting the sum as a plus c plus d. So the important thing here is we are overloading the constructors, that is we are using the same name sum for creating the constructors, as the constructor name should be same as the name of the class. Name of the class is also sum over here. तो हम तीन बार कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीन कंस्ट्रक्टर्स किस तरह से कॉल करते हैं. ठीक है, देखिए मेन प्रोग्राम, यहाँ पे भी सम कैलकुलेट हो रहा है. ये एंड ऑफ द क्लास हो गया. एंड ऑफ द क्लास में हमेशा सेमीकोलन लगाना होता है, अदरवाइज एरर आता है प्रोग्राम्स में. See the main program. First command is clr sum a1. Now I have created an object a1 of type sum. ठीक है, तो जैसे मैंने a1 में कोई भी मैंने वैल्यूज नहीं दी हैं ब्रैकेट में. ओके, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर विल अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया a1 नाम का, जो कि टाइप सम का है, तो क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल किया जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा और हमको वैल्यूज़ एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा. हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे, आउटपुट में आएगा उन दोनों वैल्यूज़ का सम. ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था. सेकेंड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है कंस्ट्रक्टर 2 आउटपुट, ताकि क्लियरली समझ में आए कि सेकेंड कंस्ट्रक्टर की आउटपुट है. कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहे हैं हम लोग, A2 is again an object that is of type sum. ठीक है, A2 में मैं यहाँ पे values पास कर रही हूँ directly 20 and 30. 20 and 30 are both integer values and they are being passed as the object A2 is getting created. तो क्या होगा, जैसे sum A2 20 30 enter इस पे कंपाइलर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा इसको, A2 जनरेट होगा. A2 में A में वैल्यू पुट हो जाएगी 20, B में वैल्यू पुट हो जाएगी 30, और आउटपुट में आ जाएगा 20 प्लस 30 दैट इज 50. ओके, सिमिलरली अगेन कंस्ट्रक्टर 3. कंस्ट्रक्टर 3 कैसे समझ में आएगा कंपाइलर को, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने अगेन एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसका कि नाम है A3. वो फिर से क्लास सम टाइप का है और उसमें हम वैल्यूज पास कर रहे हैं 10, 7.2 एंड 3.34. तो यानी फर्स्ट वैल्यू यहाँ इंटीजर है, सेकेंड वैल्यू फ्लोट है, थर्ड वैल्यू डबल है. तो यहाँ से कंपाइलर को समझ में आएगा कि यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है और आउटपुट में इन तीनों वैल्यूज का सम हमको डिस्प्ले में दिखेगा. ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाती हूँ. देखिए, एंटर द वैल्यूज 5 and 8. तो पहला सम क्या है, 5 plus 8 दैट इज 13. कंस्ट्रक्टर 2 में सम क्या आ जाएगा, 50, 20 plus 30. और कंस्ट्रक्टर 3 में जो हमने तीन वैल्यूज एंटर की थी
यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक इंटीजर थी, एक फ्लोट थी और एक डबल थी। इन तीनों का जो सम आएगा वो सम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 3 की आउटपुट में दिख रहा है। तो ये प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स यूज़ किए हैं, या फिर इसको हम ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। देखिए सेम नाम का कंस्ट्रक्टर है पर 3 बार हमने उसको डिफाइन किया है, और जब हम मेन प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं तो जब हम मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द कंपाइलर इज अंडरस्टैंडिंग विच कंस्ट्रक्टर हैज टू बी कॉल्ड। A1 में यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया। यहाँ पे वैल्यूज़ हैं इंटीजर टाइप्स की तो कंस्ट्रक्टर 2 कॉल किया गया। यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 3 अलग अलग टाइप्स की तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 3 कॉल किया गया। Okay, so this was the basic thing that is important in this program. That is, we are using multiple constructors or overloading of constructors. We are seeing the next program. In this program, we will be using a destructor along with the constructor. See, here we have a class that is of name line. We are having a variable that is of type double. The variable name is, that is the data member. The data member name is length. We are setting the length as the value L, whatever will be given by this function. This is a member function of the class line. Then for getLength function, this is another member function. We are returning the length. This is returning a double type of variable. These are the simple member functions that we have used till now. Now this line, this one is, the name is same as the name of the class itself. Therefore, it's a constructor. Inside this constructor, we are not initializing any values, but we are just writing a statement object constructed. तो क्या होगा, जब भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी हम जैसे ही ना ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे ऑफ क्लास टाइप लाइन, तो ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा, ये फंक्शन में जाएगा कंपाइलर और हमको आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, नाउ दिस इज द डिस्ट्रक्टर। स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है और कंस्ट्रक्टर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट की जाती है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी एलोकेट की जाती है, उस मेमोरी स्पेस को फ्री करने के लिए, उस स्टोरेज स्पेस को क्लियर करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर्स यूज़ करते हैं। ओके, the rules for writing a destructor is, the name of the destructor is again the same as the name of the class. देखिए यहाँ पे line था name of the class, name of the destructor is same as line, and there is a symbol. This symbol is very important and we have to use this symbol for defining a destructor. A destructor cannot take any arguments, okay, and also it cannot return anything. कभी भी कोई डिस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर में तो एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, पर डिस्ट्रक्टर में ना हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कंपाइलर डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो आउटपुट में क्या लिख के आना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड। ये हमने इसलिए इस तरह के कमेंट्स लिखे हैं ताकि हमको समझ में आए आउटपुट प्रोग्राम का। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम एक लाइन की लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं और इसको हम सेट करते हैं कोई एक वैल्यू पे और फिर हम आउटपुट में उसी लेंथ को रिटर्न कर रहे हैं। दो मेंबर फंक्शंस हैं यहाँ पर और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है और एक डिस्ट्रक्टर है। ये प्रोग्राम सिंपली कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स का यूज़ डिफाइन कर रहा है और कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लास का डेफिनेशन एंड हो गया सेमीकोलन के साथ। अब नाउ सी द मेन प्रोग्राम। इन द मेन प्रोग्राम एज वी डिफाइन एन ऑब्जेक्ट L1 ऑफ टाइप लेंथ, ठीक है, जैसे ही हम L1 नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे जो कि लाइन टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये वाली लाइन आपको लिख के आएगी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड, आपको स्क्रीन पे दिखेगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड, जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ L1, L2 तो 2 बार लिख के आएगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड। जितनी बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा उतनी बार आपको मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, देन वी आर कॉलिंग द मेंबर फंक्शन सेट लेंथ विद द वैल्यू 6.0 सो दैट अब क्या होगा, ये जो लेंथ है, जो प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसमें इनिशियलाइज वैल्यू आ जाएगी, उसमें वैल्यू आएगी अपनी 6.0, ये वैल्यू आ जाएगी।
फिर हम जैसे ही सी आउट कमांड पे आते हैं तो लेंथ ऑफ द लाइन डिस्प्ले होगी। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, L1 डॉट गेट लेंथ, यानी एक मेंबर फंक्शन जो हमने बनाया है गेट लेंथ नाम का, उसको हम कॉल कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट L1। तो आउटपुट में ये लेंथ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम कहीं पे भी कॉल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही हम इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आएंगे, यानी हम मेन प्रोग्राम से जैसे ही बाहर आएंगे तो हमारा डिस्ट्रक्टर पे कंपाइलर जाएगा और जो मेमोरी स्पेस इस L1 ने ऑक्यूपाई करी हुई होगी उस मेमोरी स्पेस को हम लोग फ्री कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज जस्ट शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन कमांड डाल रही हूँ अभी। CLR SCR इज द कमांड फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन। आप लोग जनरली प्रोग्राम्स में CLR SCR यूज़ करिएगा क्योंकि इससे पिछले प्रोग्राम के आउटपुट से कुछ कन्फ्यूजन नहीं होता आउटपुट में, ठीक है। मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ, देखिए। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड और लेंथ ऑफ द लाइन इज 6, ये दोनों कमेंट्स आए। पर हमने जो प्रोग्राम में लिखा था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड, वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे अभी हमको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारा ये जो गेट CH है, ये जब तक आ रहा है तब तक कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइंड है और हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइंड है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेमोरी स्पेस को ले रहा है, ठीक है। इसके बाद जब हम इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आते हैं, यानी हम मेन प्रोग्राम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा। और डिस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद जो मेमोरी स्पेस लाइन L1 ने ले रखी होगी, L1 ने, वो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करके आपको दिखाऊंगी। ये क्लियर स्क्रीन कमेंट हटाने के बाद मैं इसको अभी फिर से रन करके आपको दिखाऊंगी। तो आपको पिछले प्रोग्राम का भी आउटपुट दिखेगा और उसमें आपको दिखेगा कि जैसे ही हम मेन प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं तो हमको वो जो कमेंट हमने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड, ये भी दिखाई देगा, ठीक है। ये आउटपुट देखते हैं। सी, पिछले प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट किया था तो पहले आया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड, लेंथ ऑफ द लाइन डिस्प्ले हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टेड पे कब आएगा कंपाइलर? जब हम मेन प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। ये सेकेंड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अभी हमको दिखा रहा है, जो ये लास्ट के 2 लाइन्स दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूजिंग सम प्रोग्राम, तो आपको ऐसा कोई प्रोग्राम वहाँ पे लिखना है जिसमें कंस्ट्रक्टर भी हो, डिस्ट्रक्टर भी हो, और उस प्रोग्राम को आपको ठीक से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन दिस मैनर। आपको प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है। Let's see the next program. In this program, we will be using static data members and static member functions. ठीक है? Static data members और static member functions क्या होते हैं? These are the variables of the class actually. So अभी तक जितने भी data members और member functions हमने यूज किए हैं, उन सभी को कॉल करने के लिए हमको objects की जरूरत पड़ती थी, ठीक है? That could be called only through an object. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्लास का डेटा मेंबर है और क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं जो स्टैटिक टाइप के होते हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट्स एंड जनरली दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते जाते हैं तो हमको अगर अपने प्रोग्राम में ये काउंट करना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हुए, तो जनरली हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे ठीक से स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का क्या यूज होता है अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्टर्स। See, here the name of the class is box, okay, and we are calculating in this program the volume of the box, okay. Now in this class, the static data member, that is object count, the name of the static data member is object count. It is defined as inside the public part. Then this is the constructor, okay. The constructor is same as the name of the class itself, that is box. यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं L, B और H, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इनिशियलाइज कर दिए इनकी वैल्यूज 2 to 2, ओके। एंड whenever the object will be defined, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा
अगर हम इसको 3 बार कॉल करते हैं, 3 बार हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो 3 बार लिख के आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अगर हम 6 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं तो 6 टाइम्स लिख के आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब भी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, क्योंकि कंपाइलर कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो हर बार लिख के आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है। लेंथ में हम असाइन करेंगे वैल्यू l, ब्रेड्थ में असाइन करेंगे b और हाइट में असाइन करेंगे h। ओके, these are the simple initializations using the constructor. The most important thing in this program is this object count plus plus. अब ये जो कमांड लिखा है इससे क्या होगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंपाइलर कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंपाइलर जैसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा तो ये जो काउंट है ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो काउंट है वो हमारे इस डेटा मेंबर में, यानी ऑब्जेक्ट काउंट नाम का जो डेटा मेंबर है उसके अंदर वो वैल्यू सेव होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेंबर फंक्शन यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है वॉल्यूम। इसमें कैलकुलेशन हो रहा है सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये रिटर्न कर रहा है द टाइप डबल, यानी तीनों वैल्यूज का प्रोडक्ट लेके ये रिटर्न कर दे रहा है वॉल्यूम फंक्शन। ठीक है, नाउ दिस इज अ मेंबर फंक्शन विच इज अगेन विद द स्टैटिक कीवर्ड। देखिए स्टैटिक कीवर्ड के साथ ये मेंबर फंक्शन हमने यूज किया है। इस मेंबर फंक्शन का नाम है गेट काउंट, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज सिंपली रिटर्निंग ऑब्जेक्ट काउंट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट काउंट था मेरा, जो स्टैटिक मेंबर डेटा मेंबर था, उसको रिटर्न करने के लिए मुझे एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करना पड़ा। ठीक है, उस स्टैटिक मेंबर फंक्शन ने ये वैल्यू बस रिटर्न करी, और ये जो ऑब्जेक्ट काउंट होगा ये काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्वियसली ये इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने मेंशन किया है इंटीजर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में प्राइवेट जो डेटा मेंबर्स है वो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्लास है जिसका नाम बॉक्स है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, और यहाँ पे 3 मेंबर फंक्शंस हैं, एक है हमारा कंस्ट्रक्टर बॉक्स, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, और तीसरा है स्टैटिक मेंबर फंक्शन दैट इज गेट काउंट। ठीक है, अब प्रोग्राम देखिए, यहाँ पे क्लास का डेफिनेशन एंड हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज डिफरेंट, सी अभी तक हमने ये नहीं किया था। देखिए इंट इंटीजर टाइप है ये, बॉक्स डबल कोलन ऑब्जेक्ट काउंट इक्वल टू 0, यानी ऑब्जेक्ट काउंट जो हमने एक डेटा मेंबर लिया था जो कि स्टैटिक डेटा मेंबर था, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये वैल्यू इनिशियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है ये क्लास के बाहर हो रही है, और इट इज़ नॉट इनसाइड द मेन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी स्टैटिक डेटा मेंबर यूज़ किया जाता है तो उसका जो इनिशियलाइजेशन होता है वो मेन प्रोग्राम के अंदर नहीं कर सकते हम, उसको हमको अलग से इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम में देखिए क्या हो रहा है, इनिशियल काउंट। इनिशियल काउंट क्या आना चाहिए, इनिशियल काउंट आना चाहिए 0, क्योंकि हमने गेट ऑब्जेक्ट काउंट को इनिशियलाइज किया हुआ है एज 0, और ये जो गेट काउंट मेंबर फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, सिंपली ऑब्जेक्ट काउंट रिटर्न कर रहे हैं, तो इनिशियल काउंट आना चाहिए 0। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी डिस्प्ले में। बॉक्स B1, जैसे ही मैंने लिखा बॉक्स B1 तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज ऑफ टाइप बॉक्स। ठीक है, फिर हमने वॉल्यूम्स के लिए ये लिखा है V1 V2 V3, ये 3 वॉल्यूम्स हैं। V1 है B1 डॉट वॉल्यूम, यानी बॉक्स B1 जो था, ठीक है, बॉक्स B1 जब हमने यूज़ किया उसकी वॉल्यूम जब कैलकुलेट होगी तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी B1 में। ठीक है, उसके बाद बॉक्स B2 हमने डिफाइन किया, ये वैल्यूज़ हैं बॉक्स B2 की लेंथ ब्रेड्थ हाइट की, बॉक्स B3 की लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यूज़ यहाँ पे है, ये तीनों 8.5, 6.0 एंड 2.0। यहाँ पे अगेन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स यूज हुए हैं। देखिए एक प्रोग्राम हमने पहले किया था ना कंस्ट्रक्टर्स का, यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स का मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हमने, पर यहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर को हमने 3 बार कॉल किया है विद डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स नहीं है, ये एक ही कंस्ट्रक्टर को 3 बार कॉल किया गया है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे कॉल किया है विथ नो पैरामीटर्स, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू 2 to 2 इनिशियलाइज हो जाएगी। सेकेंड टाइम हमने ये 3 वैल्यूज के साथ कॉल किया, थर्ड टाइम हमने इन 3 वैल्यूज के साथ कॉल किया। ठीक है, तो क्योंकि हमने 3 यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो 3 बार लिख के आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड तीनों में अलग अलग वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर V2 में सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी वैल्यूज का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा,
V3 में थर्ड वाला ऑब्जेक्ट जो था उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट होके वैल्यू चली जाएगी V3 में। फिर सी आउट में हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों वॉल्यूम्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। वॉल्यूम्स आर V1 क्या होना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2, V2 होना चाहिए 3.3 इंटू 1.2 इंटू 1.5 और V3 होना चाहिए 8.5 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद फाइनल काउंट में क्या आएगा, क्योंकि हमने तीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट काउंट था जिसकी वैल्यू 0 थी ये 1 2 3 3 बार इंक्रीमेंट होगी। तो अब ऑब्जेक्ट काउंट में वैल्यू फाइनल काउंट में क्या होनी चाहिए, द वैल्यू शुड बी 3। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्प्ले कराया है बॉक्स डबल कोलन गेट काउंट, तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी फाइनल काउंट, ये वैल्यू आनी चाहिए 3। ठीक है, चलिए हम इसको रन करके देखते हैं अभी। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा, देखिए इनिशियल काउंट 0 है, कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल किया गया तो लिख के आ रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कॉल्ड कॉल्ड। वॉल्यूम्स क्या है, फर्स्ट टाइम में 8 है, सेकेंड टाइम में 5.94 है, थर्ड टाइम में 102 है और फाइनल काउंट 3। ये फाइनल काउंट किसका काउंट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का काउंट है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में अगर हम यहाँ पे बॉक्स B1 B2 B3 B4 B5 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते तो यहाँ पे फाइनल काउंट हमारा आ जाता 5। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये वेरिएबल है जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको हम यूज करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए। दिस इज द मेन यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक डेटा मेंबर्स, दैट इज इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स।